گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک اور پریڈ سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ کمانڈر سکلین کاظمی کی قیادت میں علمبردار دستہ سب سے پہلے اپنی جگہ سنبھالتا ہے۔ Resilience, bravery, fearlessness is the forte of the armed forces of Pakistan. Courage, valor, and precision are their traits when it comes to any evil eye towards the defense of the motherland. جو مخالف ہوا کے چلتے پیر اپنے دبا کے چلتے، ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے۔ علمبردار دستہ مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور جیسے کہ جن صاحب ذکر کر رہے تھے مارچنگ کالمس کا، ابھی اسی ترتیب کے ساتھ صدر مملکت کو سلام پیش کرتے ہوئے The strength of the armed forces of Pakistan is the trust which is reposed by the nation in them, due to which not only did they fulfill the objective of the defense of the country, but also played a very important role for the progress and prosperity of Pakistan. ہمارے آج کے معزز مہمانوں میں چیف آف ساؤتھ افریقن نیشنل ڈیفنس فورس کے جنرل سولی زچاریا، عوامی جمہوریہ چین کے میجر جنرل لی جن بو، جو خصوصی طور پر پیپلز لبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین کے دستے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آج شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ خواتین اور راول دستہ پریڈ سیکنڈ کمانڈ گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک، جن کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے، پریڈ سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ کمانڈر سکلین کاظمی، جن کا تعلق پاکستان نیوی سے ہے، اور پریڈ صوبیدار میجر شہزاد احمد کا تعلق 26 پنجاب قصب بٹالین سے ہے۔ یہ علمبردار دستہ تینوں مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے، جس کی قیادت میجر حسن شہزاد ڈوگر کر رہے ہیں، اور ان کا نعرہ ہے المحافظ۔ ٹرائی سروسز بینڈ، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں علمبردار دستے کو۔ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، جس کی حرمت کے لیے یہ جوان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی پہچان، ہم سب کا پاکستان، ہم یک دل، ہم یک جان، ہم زندہ قوم ہیں۔ رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں، ہم پر رب کا احسان، ہم سب کا پاکستان، ہم یک دل، ہم یک جان۔ خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، ٹرائی سروسز بینڈ کا دستہ، جس کی قیادت اعزازی لیفٹیننٹ غلام علی کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یوم پاکستان پریڈ کے دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے، اور معزز خواتین کا جیپ پہ سوار بریگیڈیئر عامر احسن نواز اس پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک، جن کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے، اور لیفٹیننٹ کمانڈر سکلین کاظمی، جن کا تعلق پاکستان نیوی سے ہے۔ قدم اٹھاؤ اس طرح زمین کا دل دہل اٹھے، وہ نعرہ ہائے گرم ہو کہ رنگے چرخ جل اٹھے، کہاں کی گور کیا کفن، بڑھے چلو مجاہدین سب شکن، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ Ladies and gentlemen, the 23rd March Parade has started and various marching columns will be marching towards the saluting dice. Brigadier Amir Ahsan Nawaz, the parade commander, is leading the parade in an open jeep, is accompanied by Deputy Parade Commander, Group Captain Nasir Jamal Khattak of the Pakistan Air Force. آج کی پریڈ کے مختلف دستے مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی
ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज जो परेड कमांडर हैं, आपने 1990 में 3 बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और इस वक्त एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत कर रहे हैं। इनके साथ जीप पे सवार परेड सेकंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन नासिर जमाल खटक जिनका ताल्लुक पाक फ़िज़ाइया से, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर सकलेन काज़मी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ब्रिगेड कमांडर अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे ये बावकार दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर हसन शहजाद डोगर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक अल मुहाफिज बटालियन 70 पंजाब रेजिमेंट से है। अलंबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट बिलाल आज़म और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नईम अहमद कर रहे हैं। मुझे साथी हज़रात, ये नौजवान हमारी मुक़द्दस तरीन रवायात के अलंबरदार हैं, और जैसा कि फरा ने भी जिक्र किया, करण साहब भी आपको बता रहे थे कि अलम को हमारी अस्करी तारीख़ में एक ख़ास अहमियत हासिल है, जिसकी हुर्मत के लिए कि जवान किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करते। Ladies and gentlemen, Pakistan Day celebrations resumed in 2015 after a gap of 7 years as a result of the phenomenal success of Operation Zarbiaz. In a continuation of this great effort, Operation Raddul Fasad is ongoing with success and a sweeping victory against terrorism. Today, we are proud to honor these brave souls of Pakistan who laid down their lives for safe and secure lives of every citizen of their beloved country. बावकार अंदाज में अलंबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते हुए, जिसमें शामिल जवान यौम पाकिस्तान परेड के मुख्तलिफ दस्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और क़यादत मेजर हसन शहजाद डोगर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 70 पंजाब रेजिमेंट से है, जिनका नारा है अल मुहाफिज। जज्बा है, बलबला है, और उसी का अक्स इन जवानों के चेहरों पर आया है। इस अलंबरदार दस्ते में कैप्टन जुहैब, कैप्टन राशिद, कैप्टन फजल, कैप्टन हारिस, कैप्टन ज़ईन, कैप्टन हैदर, कैप्टन सरमत, कैप्टन शाहजेब और कैप्टन फराज यौम पाकिस्तान परेड के मुख्तलिफ दस्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, और आप देख सकते हैं परेड कमांडर, परेड सेकंड इन कमांड और परेड स्टाफ ऑफिसर, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारी अजमत का पासबां है, हमारी रिफ़त का तर्जुमा है। ख़वातीन व हज़रात, 18 पंजाब रेजिमेंट, the Desert Hawks Battalion, one of the most decorated regiment of the Pakistan Army, 18 पंजाब रेजिमेंट, पाकिस्तान की तमाम जंगी तारीख के तमाम मार्कों में हिस्सा लेने वाली और 76 जानों का नजराना पेश करने वाली ये रेजिमेंट। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर खालिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इस रेजिमेंट को पाकिस्तान की जंगी तारीख के तमाम मार्कों में हिस्सा लेने का एजाज़ हासिल है। जमा मर्दी, इस्तक़लाल और शुजाअत की बुनियाद पर 12 सितारे जुर्रत और तमग़ाए जुर्रत से नवाजा जा चुका है। 1965 की पाक भारत जंग में इस रेजिमेंट ने दुश्मन को शिकस्त दी। 18 पंजाब रेजिमेंट, इस यूनिट को द डेजर्ट हॉक्स के लक़ब से नवाजा गया। कैनुला बटालियन 21 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तुफ़ैल कर रहे हैं। ये पलटन ऑपरेशन अलमीज़ान, महमद एजेंसी और सियाचिन ग्यारी सेक्टर के दिफा के दौरान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। पाक फ़ौज की ये जांबाज पलटन 1 अक्टूबर 1965 को एबटाबाद के मकाम पर वजूद में आई और इस यूनिट के बहादुर सपूतों ने पाकिस्तान की जंगी तारीख के कई मार्कों में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तुफ़ैल कैनुला बटालियन की क़यादत कर रहे हैं। अल्लाह के शाह सवार के तौर पर ये रेजिमेंट जानी जाती है। इस यूनिट को पाक फ़ौज की जुर्रत और बहादुरी के नतीजे में दिए गए जंगी एजाज़ात हासिल करने का इम्तियाज़ भी हासिल है, जिसमें 2 सितारा जुर्रत, स्नो लेपर्ड्स 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल राजा इरफान अहमद कर रहे हैं।
یہ ریجمنٹ 1 نومبر 1975 میں سیاچن کی برف پوش پہاڑوں میں مارز وجود میں آئی. اس پلٹن نے سیاچن کے بلند محاذ ہوں یا جنوبی وزیرستان کے سنگلاخ پہاڑ، کشمیر کی وادیاں ہوں یا شمالی وزیرستان کا آپریشن ضرب عزم، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا تعلق ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ سے. اللہ کا کرم، موجوں پہ قدم، ہمت کا علم، ہماری سمندری سرحدوں کے محافظ اور سی لائنز آف کمیونیکیشن کے نگہباں پاک بحریہ کے جوان. اس دستے کی قیادت کمانڈر عاطف ضمیر کر رہے ہیں، جن کا تعلق پاکستان نیوی کی آرڈننس برانچ سے. سطح آب، زیر آب، فضا اور زمین پر بیک وقت ان کی پیشہ ورانہ مہارت پاک بحریہ کی 4 جہتی 4 ڈائمینشنل فورس جو کہ انتہائی جدید ترین ہتھیاروں سے مزین ہے. پاک فضائیہ کا دستہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. پاک فضائیہ کے جوانوں کے اس دستے کی قیادت ونگ کمانڈر نوشیر خان کر رہے ہیں. لڑاکا طیاروں، مہلک ہتھیاروں اور جدید ریڈاروں سے لیس پاک فضائیہ دنیا کی بہترین فضائی افواج میں شمار کی جاتی ہے. پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. فخر نگون 760 مجاہد بٹالین کا دستہ. اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل غضنفر علی تارڑ کر رہے ہیں. مجاہد فورس جو کہ وادی کشمیر کی بلند و بالا، دشوار گزار اور سنگلاخ سرحدوں پر معمور ہے. اس فورس کے تقریباً 1300 سے زائد آفیسرز، سردار صاحبان اور شیر دل جوان دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. فخر نکرون بٹالین 760 مجاہد بٹالین کا دستہ. فرنٹیئر کور پاک افغان سرحد کے نگہبان فرنٹیئر کور کے جوان. اس دستے کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل علی نواز مغل کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف فرنٹیئر کور نے جرت اور بہادری کی وہ داستانیں رقم کی ہیں جو تاریخ کا ایک روشن باب ہے. فرنٹیئر کور کے جوانوں کا دستہ معائنہ کر رہے ہیں پریڈ کا. پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ ڈائمنڈ سائرن زمانہ امن ہو یا جنگ موسموں سے بے نیاز ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجرز کے جوان جن کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب سے ہے اور اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ہارون حفیظ کر رہے ہیں. آپریشن رد الفساد میں پاکستان رینجرز پنجاب کا انتہائی اہم اور فعال کردار رہا ہے. پاکستان رینجرز کے غیور اور بہادر جوانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ 1965 اور 1971 میں اپنے خون سے اس عرض وطن کی آبیاری کی اور اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. پاکستان پولیس کی نمائندگی اسلام آباد پولیس کا دستہ جس کی قیادت سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ذیشان حیدر کر رہے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد پولیس سے ہے. 1981 میں اپنے قیام سے اب تک اسلام آباد پولیس کے 40 سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں. یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پولیس کو 14 قائد اعظم پولیس میڈل اور 13 صدار کی پولیس میڈل سے نوازا جا چکا ہے. لیڈی سروسز ٹرائب سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ گھر ہی مسکن نہیں ہمارا، ہم سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی ہے. اس دستے کی قیادت میجر ڈاکٹر اسما افتخار کر رہی ہیں اور پاکستان ایئر فورس کی نمائندگی فلائٹ لیفٹیننٹ انم حسن جبکہ پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹیننٹ نغمانہ کر رہی ہیں. یہ صرف ایک دستہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کی 52% خواتین کی نمائندگی. ٹرائی سروسز آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز جس کی قیادت لیفٹیننٹ مہر افروز کر رہی ہیں. 1965 اور 1971 کی جنگوں سمیت دیگر محکمین آفیسرز کی خدمات قابل تحسین ہیں اور حکومت پاکستان نے میجر سلمہ ممتاز کو 1971 کی جنگ میں ان کی خدمات کے جذبے پر فلورنس نائٹنگیل کا ایوارڈ دیا. میں ہر دم تیار، اتحاد، یقین اور تنظیم کی عملی تصویر بوائے اسکاؤٹس کا دستہ جس کی قیادت اسکاؤٹ کیڈٹ صفی اللہ خان کر رہے. ہم خواب ہیں اقبال کا، قائد کا ہم ارمان ہیں.
ہم آبرو ہیں قوم کی، ہم فخر پاکستان۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان چیف اسکاؤٹ پاکستان ہے۔ پاکستان گرل گائیڈز کا دستہ، وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ تندرہ جو گرل گائیڈز کی پہلی پیٹرن محترمہ فاطمہ جناح کا خاصہ تھا، اسی کا عکس ان گرل گائیڈز کے چہروں پر عیاں ہے۔ اس دستے کی قیادت نوشابہ بخاری کر رہی ہے اور گرل گائیڈز کا دستہ 30ویں مرتبہ یوم پاکستان پریڈ میں حصہ ہو رہا ہے۔ پاکستان بھر سے 1,17,000 گرل گائیڈز کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ سلامی کے چبوترے پر یہ موجود غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرا عہد وفا تیری آزادی، اس قول میں کوئی باک نہیں، تیرے نام کی اجلی وردی سے بڑھ کر کوئی جامہ پاک نہیں۔ خواتین و حضرات، دفاع وطن کا جب بھی کوئی کڑا مرحلہ درپیش ہو تو سب کی نگاہیں SSG کی جانب اٹھتی ہیں۔ کہ ایسے میں خطروں سے بے نیاز موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کود جانے والے یہ جوان پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ دشمن پر ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ اس کے لیے شکست کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل وحید احمد ملک کر رہے ہیں، جن کا تعلق 5 کمانڈوز زلزال بٹالین سے ہے، اور اس بٹالین نے 2 ستارہ بسالت، 20 تمغہ بسالت، 12 امتیازی اسناد اور 22 چیف عوامی اسٹاف کمیشن کارڈز کے اعزازات اپنے سینے پر سجائے ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ اللہ کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ من جان بازم زلزال بٹالین کا دستہ، SSG کے اس دستے میں پاک فضائیہ کے اسپیشل سروس ونگ اور پاک نیوی کے PNS اقبال کے جانباز بھی شامل ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر شاہد ایئر فورس، جبکہ پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹیننٹ کمانڈر ذیشان زیدی کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اسپیشل سروس گروپ کا انتہائی اہم کردار۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسلامی کے سامنے SSG کا دستہ، تمام حاضرین اپنی نشستوں سے کھڑے۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، سعودی اسپیشل فورسز کا دستہ، جس کا تعلق سعودی لینڈ فورسز سے ہے۔ اس دستے کی قیادت کیپٹن سلطان سعید الحربی۔ گہرے سبز رنگ کا سعودی پرچم اٹھائے ہوئے سعودی عرب کی اسپیشل فورسز کا دستہ، جس میں شامل ہیں لیفٹیننٹ فیصل عبداللہ غامدی، لیفٹیننٹ صالح عبد الرحمان اور لیفٹیننٹ محمد عبد الرحمان۔ سعودی اسپیشل فورسز کو سعودی عرب کی لینڈ فورسز کی خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ دستہ پاک سعودی عرب لازوال دوستی کی مثال اور برادرانہ تعلقات کی ایک عظیم مثال۔ اسپیشل فورسز کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے سلامی پیش کرتا ہوا، یہ دستہ پاک سعودی عرب تعلقات کی ایک شاندار مثال اور اس کا عملی نمونہ کیپٹن سلطان سعید الحربی کی قیادت میں سعودی عرب کی مسلح افواج کا دستہ۔ حاضرین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے آج کی اس پریڈ میں۔ آج کی یہ پریڈ انتہائی منفرد اور خصوصی اہمیت کی حامل، اور خواتین و حضرات انتہائی ایکسکلوزیو مناظر
ٹرائی سروسز پیپلز لبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین کا دستہ پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریڈ میں شامل ہو رہا ہے. اس دستے کی قیادت کیپٹن سن شیچیان کر رہے ہیں. چمبا یوجی وان سوئی وان سوئی. لانگ لیو چائنا پاکستان فرینڈشپ. اس دستے کا تعلق پیپلز لبریشن آرمی کی گارڈ آف آنر رجمنٹ سے ہے جس کا قیام 65 برس قبل 1952 میں عمل میں لایا گیا. اس دستے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی اور چائنیز قوم کی تاریخ کے مختلف ادوار میں گارڈ آف آنر کا حصہ رہا ہے. 4000 سے زائد بار اعزازی گارڈ پیش کرنے کا منفرد اعزاز بھی اس دستے کو حاصل ہے. اس دستے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کی 35ویں 50ویں اور 60ویں تقریبات میں بھی شمولیت کی اور چین کے لیے وقار اور فخر کا باعث بنا. Ladies and gentlemen, Pakistan Day Parade 2017 attains special significance today. The Armed Forces contingent of People's Republic of China is also participating. The 19-member Chinese contingent is led by Senior Colonel. Participation is reflective of one of the most trustworthy and close mutual friendships of Pakistan. مارچنگ کا انتہائی خوبصورت انداز. پاک چین دوستی higher than the mountains, deeper than the ocean and sweeter than the honey. پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور لازوال ہے. جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا ہے دوست ملک چین نے ہمیشہ پاکستان کا بڑھ کر ساتھ دیا. اور دور حاضر میں سی پیک کی توانائی اور رسد و رسائل کے منصوبوں پر عمل درآمد اسی بے پناہ یگانگت اور باہمی تعاون و اشتراک کی غماز ہے. عوامی جمہوریہ چین کا پرچم اٹھائے یہ باوقار دستہ جس کا تعلق پیپلز لبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین کے ٹرائی سروسز سے ہے. شامل ہیں. 1952 میں عمل میں لایا گیا. اس دستے کو یہ عظیم پاکستان کے جھنڈے اور چین کی جھنڈیاں لہرا رہے ہیں اور یہ پاک چین دوستی یہ ایک روشن مثال ہے آج یوم پاکستان. اور پھر اس دستے کی شرکت کیا کہتے ہیں چشمے میں روشن ماشاء اللہ. بالکل. اور سے کھڑے ہو کر اس دستے کا استقبال کیا. مارچنگ کالمز کے بعد اب سوار دستے بھی سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائی سروسز بینڈ کے دستے کو جس کی قیادت اعزازی لیفٹیننٹ غلام علی کر رہے ہیں. پاک بحریہ کی نمائندگی ماسٹر چیف پیٹی آفیسر جمروز خان جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر طارق محمود کر رہے ہیں. اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا منوایا. اور یہ جتنی دھنیں آپ سن رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی پریڈ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ٹرائی سروسز بینڈ ہے. بہت ہی خوبصورت دھنیں پیش کرتے ہوئے ٹرائی سروسز بینڈ کا دستہ. اور آج کی اس پریڈ میں ترک بہتر بینڈ بھی شرکت کر رہا ہے. اور یہ آپ کے سامنے پریزیڈنٹ باڈی گارڈز کا دستہ. 45 گھوڑوں پر مشتمل یہ دستہ پاک فوج میں آرمڈ کور کی سب سے سینئر رجمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم سمو سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے صبح کے دوڑتے گھوڑے ٹاپوں سے دھول اڑاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو تاراج کرنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. اس دستے کو صدر پاکستان کا حفاظتی دستہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اس دستے کی قیادت کرنل عبد المنان کر رہے ہیں. صدارتی گارڈ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دستے مبارک سے پاکستان کا پرچم عطا کیا جو آج بھی بٹالین کے کوارٹر گارڈز پر لہرا رہا ہے. یہ PVG ریجمنٹ پولو اور ایکسٹریم کھیلوں کی بنا پر پاکستان میں جانی جاتی ہیں. ان کھیلوں نے عظیم کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا. پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کا دستہ. بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ پولو پہچان شندور اور بابو سر کے ٹورنامنٹس پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے دستے کا ایک دلکش منظر. قیادت کر رہے ہیں کرنل عبد المنان. Ladies and gentlemen, now drive past of mechanized columns will start.
Armored Corps columns will lead the mechanized columns. ज़मीनी दस्तों के मार्च के बाद अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे, जिनमें शामिल हैं आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस, एयरफोर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स और एसपीडी के दस्ते. Men in black, the pride of Pakistan Army, the king of the battle, armored corps का दस्ता, जिसमें अल खालिद, अल जर्रार और T-80 टैंक्स शामिल हैं. फायर पावर, मोबिलिटी और शॉक इफेक्ट की बिना पर आर्मर्ड कोर को मैदान जंग में दुश्मन के लिए दहशत की अलामत एंड द आर्म्स ऑफ डिसीजन जानी जाती है. आर्मर्ड कोर के इस दस्ते में सबसे आगे अल खालिद टैंक का दस्ता. the unbeatable, unshakable, the commander of mobile guard named Sword of Allah, Hazrat Khalid bin Walid के नाम से मंसूब, the main battle tank of the armored corps with its lightning speed and thunder, Al Khalid tanks का दस्ता. वन अप फॉर्मेशन में चलने वाले अल खालिद टैंक के इस दस्ते का ताल्लुक 39 कैवलरी से है और इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद खल्दून अल्ताफ कर रहे हैं. Vanguard Battalion, 39 Cavalry, सबसे आगे आर्मर्ड कोर का दस्ता. हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करता खालिद टैंक दिन और रात में जंग लड़ने की सलाहियत रखने के अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ अपना मुस्सिर दिफा कर सकता है. अल खालिद टैंक को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर. 125 मिलीमीटर गन से लैस अल खालिद टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक वैनगार्ड रेजिमेंट 39 कैवलरी से है. खालिद टैंक का दस्ता जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम से मशहूर, वैनगार्ड के नाम से जाने वाली खालिद कैवलरी को 2 सितारे वसालत. 39 कैवलरी को ऑपरेशन अल मिज़ान और ऑपरेशन राह निजात में ज़मीनी फ़ौज की नुमाइंदगी में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने का एजाज़ हासिल है. हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के दिन और रात में दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद लड़ने की सलाहियत, और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ मौसर दिफा की अहलियत. चुविंडा का महाज, जंग अजीम दोइम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई. और ये है गन की सलामी का खूबसूरत अंदाज. खातिन और हज़रात, अल खालिद टैंक सलामी के चबूतरे के सामने. 125 मिलीमीटर गन से लैस अल खालिद टैंक्स का दस्ता. और आप देख सकते हैं अल जरार टैंक्स को, जिनका ताल्लुक अल्लाह अकबर 57 कैवलरी से है, जिसकी क़यादत कैप्टन मोहम्मद हसन अरीब कर रहे हैं. दुश्मनों की सफ़ों को ताराश करने वाले हज़रत जर्रार बिन अल अज़वर के नाम से मंसूब. हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करदा जर्रार टैंक दिन और रात में लड़ने की सलाहियत रखने के अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ अपना मुस्सिर दिफा करने की अहलियत रखता है. नाम की से दहशत की आमद अज़ कमांडिंग ऑफिसर 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान, जो कि इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका नारा है फतह या शहादत. सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट. और आज के इस मैकेनाइज इन्फेंट्री में M113P APCs शामिल हैं. ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं M113P APCs को. सलामी पेश करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान सलामी पेश करते हैं. स्क्वाड्रन ने बेहतरीन जगह पे सलाहियत
मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता किस्म की APCs शामिल हैं और ये आप देख सकते हैं इस वक्त VCC-1 इटालियन APCs को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल्स। इस दस्ते की क़यादत मेजर ज़ियाउल हसन शाह कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 37 बलोच लाइट एंटी टैंक बटालियन से। इनका नारा है अल मदद या खुदा। ये यूनिट टैंक चिकन हथियार से लैस है जो वायर गाइडेड है और सुल्फेनाइट साइट की मदद से रात को भी दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को 3000 मीटर के फासले तक तबाह कर सकती है। इस दस्ते की क़यादत मेजर ज़ियाउल हसन शाह कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री कॉलम और आप सबसे आखिर में देख सकते हैं फ्लाई टू स्ट्राइक APC माउंटेड टो वेपन सिस्टम से लैस M113PA2 APCs का दस्ता जिसकी क़यादत मेजर आसिफ खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 227 आज़ाद कश्मीर हैवी एंटी टैंक कंपनी से है। माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड MRAP का दस्ता जिसका ताल्लुक 5 लाइट कमांडो बटालियन सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन इमादुद्दीन कर रहे हैं, जिनका नारा अल कासिम है। इस वक्त आप आर्टिलरी के दस्ते को देख सकते हैं जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान अली कर रहे हैं। इनका ताल्लुक 24 मीडियम ज़रबुल अव्वल से है। सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता जिसकी क़यादत मेजर वजाहत अब्दुल हमीद जंजुआ कर रहे हैं। शानदार तारीख की हामिल ये रेजिमेंट, जिसे आज़ादी के बाद फर्स्ट माउंटेन रेजिमेंट रॉयल पाकिस्तान आर्टिलरी के नाम से मंसूब किया गया। 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिसकी क़यादत मेजर वजाहत अब्दुल हमीद जंजुआ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता जिसका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट अरसलान कर रहे हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बनाने की अहलियत, गोले का वजन 200 पाउंड और इनसे हर 40 सेकंड में एक गोला गिराया जा सकता है। सलामी का खूबसूरत अंदाज M109 गन्स का दस्ता और इस वक्त आप देख सकते हैं M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र गन का दस्ता जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट तौसीफ कर रहे हैं। 30 किलोमीटर फासले तक हदफ को यकीनी निशाना बनाने की अहलियत रखता है और इस यूनिट ने ऑपरेशन राह हक, ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात में नुमायां कारहाय नुमायां सरंजाम दिए हैं। आर्टिलरी के इस दस्ते में मुख्तलिफ अक़साम की गन्स शामिल हैं और सबसे आखिर में आप देख सकते हैं 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता जिनका ताल्लुक द होली साइन मीडियम 99 मीडियम रेजिमेंट से, जिसकी क़यादत कैप्टन नुमान इकबाल कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ इशफाक का ताल्लुक इसी रेजिमेंट से और शहादत पाई उन्होंने। और अब आप देख सकते हैं फायर फाइंडर रडार SLC-2 जिनका ताल्लुक द स्ट्राइकिंग लोकेटर्स 156 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से है, जिसकी क़यादत मेजर इमरान जंजुआ कर रहे हैं। 35 किलोमीटर तक तोपखाने के गोले और 50 किलोमीटर तक रॉकेट का पता लगाने की अहलियत। इस रेडार की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर मौसर फायर गिराया जा सकता है। इस यूनिट को ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन अल मीज़ान और ऑपरेशन खैबर में खिदमत सर अंजाम देने का एजाज़ है। इस वक्त आप देख सकते हैं मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 120 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम जिनका ताल्लुक 5 MLRS रेजिमेंट से है। मुकम्मल खुदकार सिस्टम के तहत 1 मिनट में 10 रॉकेट्स फायर करने की अहलियत और इस दस्ते की क़यादत कैप्टन राना नसीर हुसैन कर रहे हैं। इस यूनिट को MLRS सिस्टम रखने वाली पहली यूनिट का एजाज़ हासिल है। ज़मीन से ज़मीर पर फायर करने वाले इस वेपन सिस्टम का काम दुश्मन की पोजीशन और उनकी सफ़ों को तोड़ना और इसके साथ साथ दुश्मन की फायर पावर रिजर्व, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स
और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और इन तनसीबात को निशाना बनाएं। फिजाओं की निगहबान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत शेर जंग बटालियन 38 लाइट एयर डिफेंस गन मिसाइल रेजिमेंट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल फरहान अली कर रहे हैं। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल फरहान आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आर्मी एयर डिफेंस जदीद सामान ज़रब व हर्ब और बेहतरीन तरबियत की वजह से दुश्मन फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत। और ख़वातीन व हज़रात, ये आप देख सकते हैं ऑर्लिकन गन्स के दस्ते को, जिनका शुमार दुनिया की बेहतरीन गन्स में किया जाता है, जिनका ताल्लुक 97 रेडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जो किलर के नाम से जानी जाती है और जिसकी क़यादत मेजर सैयद जुल्करनैन कर रहे हैं। ऑर्लिकन गन्स स्काई गार्ड रडार की मदद से दुश्मन की फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत, और इन गन्स का शुमार दुनिया की बेहतरीन गन्स में किया जाता है। पाक फ़िज़ाइया अपनी तरबियत और पेशा वराना महारत की वजह से दुश्मन की फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत। सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उनके साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और आप देख सकते हैं इस वक्त जिराफ रडार को, जिसका ताल्लुक 153 लाइट एयर डिफेंस गन मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड रेजिमेंट से है। कैप्टन शेख सलीम यूसुफ इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ये रडार 40 किलोमीटर से दुश्मन के जहाज़ों की पेशगी इत्तला मुहैया करता है। RBS 70 की मदद से दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों को वेपन रिलीज़ करने से पहले मार गिराने की सलाहियत RBS 70 वेपन सिस्टम, जो जिराफ रडार की मदद से दुश्मन की फ़िज़ाइया को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। RBS 70 का दस्ता, और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर FM 90 का दस्ता, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम FM 90, जिसका ताल्लुक 89 सरफेस टू एयर मिसाइल एस्कॉर्ट रेजिमेंट से है। इस दस्ते की क़यादत मेजर खुर्रम शहजाद कर रहे हैं। FM 90 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल पाक चाइना दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है, और हमारी दिफाई सलाहियत में नुमायां इजाफा। 4 मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल वेपन सिस्टम न सिर्फ दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों बल्कि क्रूज़ मिसाइल। ख़वातीन व हज़रात, आप देख सकते हैं इस वक्त आर्मी एयर डिफेंस का वेपन सिस्टम LY-80, जो पहली मरतबा यौम पाकिस्तान परेड का हिस्सा बन रहा है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अदनान आलम सती कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक फर्स्ट लो मैड रेजिमेंट से है। LY-80 रेडी टू फायर वेपन सिस्टम जदीद जंगी जहाज़ों समेत क्रूज़ मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक़्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। एक सिस्टम 9 गाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें सर्च रडार, गाइडेंस रडार, कमांड व्हीकल और 3 फायरिंग व्हीकल शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड स्पोर्ट व्हीकल, मिसाइल ट्रांसलोडिंग व्हीकल और पाकिस्तान आर्मी की फर्स्ट फ्लोर मैड रेजिमेंट पाकिस्तान के दिफा में एक अहम संग मील, और पाकिस्तान एयर फोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर बख्त बेदार लोन कर रहे हैं। सबसे पहले हाई लेवल रडार सिस्टम TPS 77 रडार, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकेंगे इस वक्त विंग कमांडर बख्त बेदार लोन सलामी पेश करते हुए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयर फोर्स एयर डिफेंस से है। ख़वातीन व हज़रात, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान निशान इम्तियाज़ मिलिट्री फ्लाई पास की क़यादत करने के बाद परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले हाई लेवल रडार सिस्टम TPS 77 रडार, जो 1 लाख फुट बुलंदी और 500 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज़ों को ढूंढ निकालता है। पाक फ़िज़ाइया हमारी फ़िज़ाओं की निगहबान, और आप देख सकते हैं इस वक्त YLC-6 रडार
YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवास करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। पाक फ़िज़ाइया ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। मोबाइल एंड डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवास करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रडार्स शामिल हैं जो दरअसल हमारी भरपूर अस्करी कुव्वत का मुज़ाहिरा है। मुख्तलिफ़ अक़साम के रडार्स को आप देख सकते हैं जिनका ताल्लुक़ एयर डिफेंस एयरफोर्स से है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम दुनिया के बेहतरीन मिसाइलों से लैस बैक वक़्त मुतअद्दिद तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है और इस दस्ते की क़यादत फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अरसलान परवेज़ कर रहे हैं। स्पाडा 2000 दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल। पाक फ़िज़ाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो मुल्क भर में फैले तीनों मुसल्लह अफ़वाज के रडार और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स का डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मुहैया करता है, जहाँ से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़माना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। विजिलेंस, रिस्पॉन्सिवनेस, प्रोफेशनलिज्म इनका हॉलमार्क। MM आलम और राशिद मिनाज शहीद। और अब इंजीनियर्स का दस्ता जिसकी क़यादत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी बिलाल फारूक कर रहे हैं। रूहे रवां हरकत बरकते अस्करियाँ फल मुगीरात सुबह के दौड़ते हुए घोड़े का नारा लिए। ट्रॉल एंटी टैंक माइन का दुश्मन की बारूदी सुरंग को चीरते हुए अपनी सिपाह की पेशकदमी को यकीनी बनाते हैं और एक टैम ट्रिप 5 टैम्स पर मुश्तमिल होता है। इस दस्ते की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी बिलाल फारूक कर रहे हैं। रूहे रवां हरकत बरकते अस्करियाँ कोर ऑफ इंजीनियर्स। और आप देख सकते हैं आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज को जो छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत। मीडियम स्पैन का ये ब्रिज और ये देख सकते हैं आप असॉल्ट ट्रैक वे। जी, दौरान जंग दलदली और कीचड़ वाले इलाके में खुदकार तरीके से बिछाया जाने वाला असॉल्ट ट्रैक वे, इसकी लंबाई 46.5 मीटर है जिसको बिछाने के लिए सिर्फ 5 मिनट दरकार है। असॉल्ट ट्रैक वे मैकेनाइज कॉलम को रवां रखने की सलाहियत, खुदकार सिस्टम, असॉल्ट ट्रैक वे, मोबिलिटी के लिए इंतहाई अहम कोर ऑफ इंजीनियर्स। और ये असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 इसको बड़ी नहरों और नालों पर बिछाकर अपनी फौज के लिए वक्ती तौर पर रास्ता बनाया जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 54 मीटर है जो 50 टन वजनी गाड़ियों का बोझ उठाने की अहलियत रखता है। ये ब्रिज 12 टन ट्रक गाड़ी पर लोडेड है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में फ्लोटिंग ब्रिज को देख सकते हैं आप। व्हीकल रिबन ब्रिज क्लास 60 जदीद तरीन खुदकाराबी पुल। ये फ्लोटिंग ब्रिज बड़ी नहरों और दरियाओं पर इस्तेमाल करके टैंकों और गाड़ियों को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100 मीटर लंबाई का पुल बआसानी 1 घंटे में बिछाया जा सकता है। असॉल्ट इंजीनियर बटालियन जंग के दौरान, और ये आप माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम को देख सकते हैं। ये दौरे जदीद की एक ऐसी है जो कम से कम वक्त में दुश्मन की किसी भी नागहानी पेशकदमी को बारूदी सुरंगों के जरिए से रोक सकता है। MDs इंतहाई कलील दौरानिया में एंटी पर्स माइंस और टैंक पर मबनी माइन फील्ड बारूदी सुरंग बिछाता है जिसकी औसत गहराई 600 मीटर होती है। रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम, इसको बहुत कम वक्त में दुश्मन की पेशकदमी के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाकर दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सकता है। 24 ट्यूब्स की मदद से 15 किलोमीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस बिछाई जा सकती हैं। और अब आप देख सकते हैं एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर व्हीकल
جو خود ساختہ उसके बाद बारूदी मवाद के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं. फर्स्ट टू एंटर लास्ट टू लीव, कोर ऑफ इंजीनियर्स. और लश्करों के साथ तुम, गाजियों के हाथ तुम, रोशनी की बात तुम, कासदान नामा बर, बिजलियों के हम सफ़र, आंधियों से बेखबर, काफिलों के रहबर, इन कबूतरों के पर. जदीद मवासलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल तेज़ और यकीनी. इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहिद रज़ाक कर रहे हैं, जो कि इस वक्त कोर ऑफ सिग्नल की एक मायनाज यूनिट 22 सिग्नल बटालियन की कमांड कर रहे हैं. ख़वातीन व हज़रात, सिग्नल कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट व्हीकल जो कोर ऑफ सिग्नल के जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम का मुजाहरा है, जिसमें सैटेलाइट, टैक्टिकल फाइबर ऑप्टिक और मुख्तलिफ अक़साम के रेडियो सेट्स शामिल हैं, जो दौरान जंग सिपाह को डेटा और वॉइस की सहूलियात मुहैया करते हैं. जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम दुश्वार गुजार इलाकों में तवील फासले पर मुतय्यन अफवाज को सैटेलाइट के ज़रिए महफूज और मौसर मवासलात बहम पहुँचाता है. कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो पाकिस्तान आर्मी की फील्ड फॉर्मेशन के ज़रिए इस्तेमाल है. ये मुतहर्रिक निज़ाम आला कमांडर्स को अपने ज़ेर कमान दस्तों से राब्ते के लिए इंतहाई मुख्तसर वक्त में कहीं भी नस्ब किया जा सकता है. तेज़ और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का ऑपरेशंस के दौरान इंतहाई अहम किरदार, और आप मोबाइल IT हब को देख सकते हैं, जिसके जरिए पाक फौज के लड़ाका दस्तों को मैदान जंग में IT सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, और IT के शोबे में तेजी से तरक्की पाक फौज का एक अहम संग मील है. रेडियो डायरेक्शन फाइंडर जिससे मैदान जंग में दुश्मन के मवासलाती निज़ाम की समत और एग्जैक्ट लोकेशन मालूम की जा सकती है. रेडियो डायरेक्शन फाइंडर्स दौरान जंग अस्करी क़यादत को दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने और उसकी अस्करी मवासलात को बेअसर करने में मदद देता है. आज के इस दौर में, और आप देख सकते हैं सबसे आखिर में माइक्रोवेव, जो महफूज और मुतहर्रिक मवासलाती निज़ाम दौरान जंग हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते का अहम जरिया है. कोर ऑफ सिग्नल का ये दस्ता माइक्रोवेव और अब स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का दस्ता. हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन के खिलाफ किसी भी बैरूनी जारियत को रोकने की जामिन और जिम्मेदार हैं. इस दस्ते की क़यादत कर्नल खावर अब्बास कर रहे हैं. ख़वातीन व हज़रात, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बुराक UAV, जो इंतहाई अहम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की फराहमी का ज़रिया है, और बुराक UAV के बिल्कुल साथ मौजूद है बुराक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जिसकी मदद से, और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की UAVs, जिसमें सबसे पहले बुराक UAV है और उसके साथ बुराक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन मौजूद है, जिसके ज़रिए इन तमाम उड़ने वाले तैयारे हैं. ऐसा ही जी, ये बगैर पायलट के उड़ने वाले त्यारे हैं. और ये शाहपर UAV को आप देख सकते हैं, जो शाहपर 200 UAV किलोमीटर की रफ्तार 8 घंटे लगातार प्रवास की सलाहियत. ये दोनों तैयारे बगैर पायलट उड़ने की अहलियत रखते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के ये दस्ते, और आप देख सकते हैं इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम की UAV का फ्लोट, जिसमें क्वाडकाप्टर, स्काउट, हुमा और उकाब UAVs शामिल हैं. इन तमाम UAVs को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है. हुमा एक टैक्टिकल UAV है, जो किसी भी जगह लॉन्चर की मदद से इसको उड़ाया जा सकता है और पैराशूट की मदद से उतारा जा सकता है. राड 2 क्रूज मिसाइल 550 किलोमीटर रेंज का हामिल फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल राड 2 राड क्रूज मिसाइल का जदीद मॉडल है, जिसे हमारे साइंसदानों ने मुकम्मल तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी और वसाइल को बरूए कार लाते हुए बनाया. और इस दस्ते की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट आसिम रऊफ़ कर रहे हैं. बिजली की कड़क, जिसे अरबी ज़बान में राद कहा जाता है, ये एक खुदकार गाइडेड मिसाइल. रात को डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल. एक खुदकार गाइडेड मिसाइल नसर मिसाइल सिस्टम.
60 किलोमीटर रेंज का हामिल और हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की अहलियत रखने वाला नसर मिसाइल सिस्टम, जिसकी क़यादत मेजर आमिर सईद कर रहे हैं। खुद साख्ता नसर मिसाइलों पर मुश्तमिल ये दस्ता इस वक्त टैक्टिकल और ऑपरेशनल सतह पर दरपेश तमाम हथियारों के खिलाफ एक मौसर हथियार और हर तरह के वॉरहेड को हदफ तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल सिस्टम टैक्टिकल और ऑपरेशनल सतह पर दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ एक मौसर हथियार। और आप इस वक्त देख सकते हैं बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम को हमा वक्त तैयार 100% दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत, हर किस्म के वॉरहेड बशमूल एटमी हथियारों को हदफ तक ले जाने की सलाहियत। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद फर्रुख कर रहे हैं। मिसाइल लोडिंग से लेकर मिसाइल फायर करने तक के तमाम काम खुदकार तरीके से सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से मुमकिन नहीं। बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम 100% दुरुस्तगी के साथ, और आप देख सकते हैं शाहीन 1 अल्फा 900 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम शाहीन 1 अल्फा शाहीन 1 का जदीद नमूना है। मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड से इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत। इसकी क़यादत मेजर हुसैन कर रहे हैं। शाहीन 1 अल्फा का लॉन्चर मिसाइल लिविंग पोजीशन और सिम्त के सामान से लैस है। SPD जदीद 3 मिसाइल से लैस, दुश्मन के लिए खतरे की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत। और आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर हाज़रीन जो कि आज की स्क्रीन में गौरी मिसाइल सिस्टम 1300 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम 100% दुरुस्तगी के साथ हदफ को रिवायती और गैर रिवायती हथियार से निशाना बनाने की अहलियत। दरमियाने फासले तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम गौरी मिसाइल सिस्टम, इस दस्ते की क़यादत मेजर अलमास असलम कर रहे हैं। साख्ता तैयार शुदा मिसाइल का लॉन्चर मिसाइल लोडिंग से लेकर फायर करने तक तमाम काम खुदकार तरीके से सरअंजाम देता है। ये मिसाइल सिस्टम लिक्विड ईंधन से चलता है। हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की महारत का मुंह बोलता सबूत। और आप देख सकते हैं शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम हमा वख्तियार 2750 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद अरशद खान कर रहे हैं। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को रवायती और गैर रवायती हथियार से निशाना बनाने की सलाहियत। इस मिसाइल सिस्टम की तैयारी हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए मुखलिस काविश, जिद्दत, लगन और महारत का मुंह बोलता सबूत। शाहीन 3 मिसाइल